Hello, a very good morning to all dear students. I am Dr. Felisa Parmar from Department of Zoology, Jhel Goswami College of Science and Research, Monarch University. Would like to heartily welcome each one of you in this PhD coursework session. So in this PhD coursework, I will teach you paper CW 101, that is research methodology, and in that paper I will teach you very first unit, that is introduction to research methodology. So this is the syllabus of your coursework. There are total 4 paper, and as I told you, I will teach you paper CW 101 research methodology. These are the 4 units of paper CW 101, and in that I will teach you unit 1, introduction to research methodology. So these are the various topics which I am going to cover in this session, and they are meaning of research, various steps involved in research process, research categories, characteristic of research, then next is hypothesis, characteristic of hypothesis, sources of hypothesis, and examples of hypothesis. So this all points I am going to cover in this session. So let's see one by one. So the very first question that arise in our mind, that is what is research. जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारी माइंड में कि रिसर्च आखिर क्या है, तो अगर रिसर्च के डेफिनेशन को हम सिंपल तरीके से देखें तो री प्लस सर्च, ओके, सर्चिंग समथिंग अगेन एंड अगेन, दैट इज रिसर्च. नाउ वी विल सी द डिफरेंट definition of research. So very first given by the Redman and Omori, according to them research की जो definition है वो है research is a systematized effort to gain new knowledge. एक systematic process है, एक systematic effort है, so that one can achieve new knowledge. अगर हम एक example देखते हैं in the field of एग्रीकल्चर, ओके, फार्मर्स क्या करते हैं, उनके पास जो नॉलेज है वो प्लस दे आर गेटिंग द न्यू नॉलेज एंड दे आर अप्लाइंग दिस नॉलेज इन द फार्म. सो एज अ रिजल्ट देर इज अ मोर प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप और गुड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप. सो ये हो गया रिसर्च अकॉर्डिंग टू द रेडमैन एंड ओ मोरी. Now the next definition given by Dr. S.L. Gupta. According to him, the definition of research is systematic process of collecting and analyzing information or the data in order to increase our understanding of the phenomenon about which we are concerned or interested. So according to him, it is also a systematic process of what? So it is for the collection of the data or collection of the information, and after that what? The next step is analysis, so that one can get the new information or one can increase the understanding regarding the particular topic or particular phenomenon or the particular problem. ओके, सो सबसे पहले क्या किया जाता है, डेटा कलेक्शन किया जाता है और आफ्टर दैट वो डेटा के अकॉर्डिंग एनालिसिस होता है, सो दैट देर इज़ अ इंक्रीज इन द नॉलेज. सपोज फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं. जस्ट बिफोर 4 years जब कोरोना आया था तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक सिस्टमेटिक वे में रिसर्च किया था. सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली थी कि कोरोना वो एक प्रॉब्लम है. उसके बाद रिगार्डिंग टू दैट सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की थी कि कोरोना क्या है, या फिर प्रीवियस ईयर्स में कभी ऐसा कोई वायरस दिखा है, उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया. फिर उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस किया, एंड आफ्टर दैट it result into the invention of
वैक्सीन, उन्होंने वैक्सीन इन्वेंट किया. सो ये हो गया रिसर्च का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एस एल गुप्ता. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट definition given by Clifford Woody. So this is the most important definition, and this definition it explains the various steps which are involved in research. So research क्या है according to the Clifford and Woody? So research it comprises defining and redefining problems. ये हो गया फर्स्ट स्टेप. उसमें क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसको डिफाइन करते हैं, उसको रीडिफाइन करते हैं. आफ्टर दैट फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशन. सो व्हाट इज हाइपोथेसिस? कि हाइपोथेसिस एक असम्पशन है या फिर एक गैस है, या फिर वी कैन से इट इज़ अ प्रिडिक्शन, पूर्व धारणा जिसको बोलते हैं. ओके, सो आफ्टर डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम एक पूर्व धारणा फॉर्मुलेट की जाती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड इवेल्यूएशन ऑफ डेटा होता है, एंड देन उसके बाद एक रिसर्च रिजल्ट कंक्लूड होता है. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और इसको हम देखेंगे वेरियस स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस. ओके, अभी एक्सपांड फॉर्म ऑफ रिसर्च डेफिनेशन है कि रिसर्च इज द वे ऑफ फाइंडिंग आंसर टू क्वेश्चन that is in a organized and in a systematic way. Okay, so why it is organized? Because research should be in a organized form, because then only one can reach to the reliable and accurate result. अगर आपको सही वाला रिजल्ट चाहिए, रिलायबल रिजल्ट चाहिए, एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, then one have to follow the systematic way. वो क्या है कि एक डिफाइनेट सेट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस या फिर मेथड्स होती है, उसको फॉलो करना है, और दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स. बिफोर यू प्रिपेयर योर प्रपोजल, उसमें एक प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करना होता है, सो दैट वन कैन रीच टू द प्रॉपर रिजल्ट. सो दैट्स वाई it should be in the systematic way. अभी next step है, it should be in the organized form. Why in the organized form? Because there is a structure or method for doing research. Okay, research ऐसे ही नहीं किया जाता, एक proper way में होता है, एक structure way follow किया जाता है, एक proper method follow की जाती है. The research process has number of the steps to guide the researcher. बहुत सारे steps को फॉलो करने पड़ते हैं, एंड आफ्टर दैट ओनली वन कैन रीच टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन विच आर द मैथड्स. ओके, वन बाय वन वो मैथड्स को फॉलो करनी पड़ती है. ओके, द नेक्स्ट इज फाइंडिंग आंसर, बिकॉज एवरी रिसर्च इट सीक्स टू answer a question or number of questions. Sometimes there is a no answer. So वो सारे questions कौन से हैं? There are total 5 W's. Okay, and the total 5 W's are what, when, where, who, why. These are the different question. So ये सारे question का answer find किया जाता है. Okay, the questions are central to रिसर्च. ये सारे क्वेश्चंस हैं वो जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, या फिर आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है, उसके सेंटर में होता है कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा कहाँ से आया. ओके, सो इफ़ देयर इज़ अ नो क्वेश्चन, देन हाउ डू वी डू द रिसर्च? क्वेश्चन के विदाउट रिसर्च इज़ नॉट पॉसिबल. Research is focused on the relevant, useful and important question, and without a question, researcher has no focus, no drive or no purpose. So questions are very important in the research. So these all are the different meaning, or we can say different definition of research. Okay, now moving towards the next topic, that is
7 steps of research process. So टोटल 7 स्टेप है एक रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करने के लिए. वेदर यू आर इन अ science stream, whether you are in a art stream, whether you are in the commerce stream, whether you are in a management, whether you are in a education, आप कोई भी फील्ड में हो, आपको ये 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं. तो वो 7 स्टेप्स गिवन हियर. The very first step, that is to identify and define research problem. So सबसे पहले क्या करना है, हमें एक रिसर्च प्रॉब्लम रिलेटेड टू द आवर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू द आवर कंसर्न सब्जेक्ट एरिया, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको डिफाइन करना है. ठीक है. सबसे पहले हमने रिसर्च क्वेश्चन या फिर रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया. जस्ट फॉर द एग्जांपल, आप सब लोगों ने यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन लिया है. सो सबसे पहले आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, उसके बाद फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर की थी. ओके. ना आफ्टर एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका रिसर्च स्टार्ट हो गया. कैसे? तो आपके जो कंसर्न सुपरवाइज़र है या फिर जो गाइड है, उन्होंने आपको एक प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखने के लिए बोला होगा. ओके. सो प्रोजेक्ट प्रपोजल इज़ व्हाट? टू आइडेंटिफाई और टू डिफाइन योर रिसर्च प्रॉब्लम या फिर योर रिसर्च क्वेश्चन. ओके. फिर उसके बाद क्या किया आपने, एक रिसर्च प्रॉब्लम या फिर रिसर्च क्वेश्चन रिगार्डिंग टू योर टॉपिक आपने आइडेंटिफाई कर लिया है. तो फिर नेक्स्ट स्टेप हो गया लिटरेचर रिव्यू या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर. आपने उसके बाद जो सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू योर रिसर्च प्रॉब्लम, रिगार्डिंग टू योर रिसर्च क्वेश्चन, उसको फाइंड किया है. ओके. वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ research article, whether in the form of thesis, in the form of magazine, जो भी फॉर्म में है रिगार्डिंग टू दैट रिसर्च प्रॉब्लम, आपने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है. ओके. अभी नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. सो मैंने जैसे बताया है आपको, हाइपोथेसिस इज क्या? दैट इज़ पूर्व धारणा. ओके. सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, बेस्ड ऑन दैट द नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. ओके. तो आपको एक पूर्व धारणा फॉर्मुलेट करनी है कि प्रीवियस, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हैं रिगार्डिंग टू योर रिसर्च क्वेश्चन. सो मैं ऐसा कर सकता हूँ या फिर मेरे रिसर्च में ऐसा रिजल्ट मिल सकता है. सो दैट इज़ योर हाइपोथेसिस. ओके. द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रिपेयरिंग रिसर्च मेथड. आपके पास जो डेटा है, अकॉर्डिंग टू दैट आप रिसर्च मेथड प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके. यू कैन फॉलो दैट इंफॉर्मेशन कि सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग वर्क करना है या फिर प्राइमरी मेथड फॉलो करनी है. आफ्टर गेटिंग रिजल्ट इन द प्राइमरी इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेप इज सेकेंडरी रिसर्च. उसके बाद फिर आप टर्शियरी रिसर्च कर सकते हैं एंड वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीड कर सकते हो. ओके. सो वो हो गया 4 स्टेप प्रिपेयरिंग रिसर्च मेथड. ओके. देन नेक्स्ट इज़ क्या, आपने वेरियस एक्सपेरिमेंट किए हैं या फिर वेरियस मेथड्स को फॉलो किया है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा. सो दैट इज़ हो गया आपका डेटा कलेक्शन. ओके. आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, दैट इज़ योर रिजल्ट. और फिर द नेक्स्ट इज़ एनालिसिस. आपने फिर उस डेटा का एनालिसिस किया. आपके पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन है कि प्रीवियस जो भी रिसर्च हुआ है उसमें ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले हैं और उसका कंक्लूजन ये है. सो आफ्टर योर रिसर्च, आपका जो डेटा है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्या रिजल्ट मिला है, और बेस्ड ऑन द प्रीवियस इंफॉर्मेशन आप एनालिसिस कर सकते हो. ओके. एंड कोई कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो. सो दैट इज़ प्रोसेसिंग एंड एनालिसिंग डेटा. ओके. देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ रिपोर्ट राइटिंग. अब सब कुछ हो गया, आपका रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन हो गया है, लिटरेचर रिव्यू हो गया है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो गया है, आपने जो भी रिसर्च मेथड फॉलो करनी थी वो हो गई है, आपके पास रिजल्ट आ गया है, आपने एनालिसिस कर लिया है एंड कोई कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं. देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ रिपोर्ट राइटिंग, और वी कैन से थीसिस राइटिंग. ओके. So these are the various steps which are involved in the research. Now I am giving you one example so you can easily understand. Suppose कि मेरे पास एक research problem है.
like lung cancer, or I have to identify the medicine or the drug for that lung cancer. ओके, सो मैंने फर्स्ट क्या किया है, एक रिसर्च प्रॉब्लम या फिर एक रिसर्च क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया है. फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा लिटरेचर रिव्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉडली मैं लिटरेचर रिव्यू करूँगी, दैट इज़ ऑन कैंसर. अलग अलग कितने टाइप्स है, और या फिर वो अलग अलग टाइप की कोई मेडिसिन या ड्रग्स अवेलेबल है. तो उसके लिए मेरा जो लिटरेचर रिव्यू होगा वो वर्ल्ड वाइड होगा. ओके, इन डिफरेंट कंट्रीज, कोई भी कंट्री में लंग कैंसर या फिर कोई और कैंसर की मेडिसिन या फिर ड्रग आइडेंटिफाई हुई है, वो कौन से स्टेज पे है, मैं सब वो ढूंढूंगी. ओके, नाउ मेरे पास इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू द कैंसर और रिगार्डिंग टू द लंग कैंसर. ओके, फिर मैं क्या करूँगी, मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. मैं एक हाइपोथेसिस या एक पूर्व धारणा फॉर्मुलेट करूँगी. मेरे पास जो जो भी डेटा अवेलेबल है, जो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बेस पे मैं एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करूँगी कि ये प्रोसीजर में ये हुआ है. सो सपोज मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करूँगी तो मेरे पास जो भी रिसर्च मेथड है उसमें मुझे ये रिजल्ट मिल सकते हैं. सो दैट इज़ हो गई पूर्वधारणा और हाइपोथेसिस. उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, जो भी रिसर्च मेथड फॉलो की है वो मैं मेरे रिसर्च प्रॉब्लम में या फिर मेरे रिसर्च क्वेश्चन में उस मेथड को फॉलो करूँगी. लाइक फॉर एग्जांपल, प्राइमरीली मैं चेक करूँगी कि जो जो भी लंग कैंसर के पेशेंट है या फिर वॉटेवर जो भी है, उसमें जो मेडिसिन है जो प्रीवियसली आइडेंटिफाई हुई है या फिर उसके ऊपर काम चल रहा है, तो सेम ड्रग इट विल गिव एनी साइड इफ़ेक्ट और नॉट. ये हो गया मेरा प्राइमरी रिसर्च, वेदर इट इज़ गिविंग साइड इफ़ेक्ट और नॉट. सपोज इफ़ इट इज़ गिविंग साइड इफ़ेक्ट देन मैं उसको निकाल दूँगी. और फिर अगर सपोज वो नहीं दे रही है साइड इफ़ेक्ट तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगी और मैं आई विल चेक द इफ़ेक्ट, कितना इफ़ेक्ट देता है. 50% है, 60% है, 70% है, 80% है, वो चेक करूँगी. ओके, सो ऐसी 3-4 सपोज ड्रग्स है तो मैं ईच एंड एवरी ड्रग के लिए रिसर्च मेथड फॉलो करूँगी. एंड बेस्ड ऑन दैट रिसर्च मेथड मैं क्या करूँगी, आई विल कलेक्ट द रिजल्ट और डेटा कलेक्शन करूँगी. ओके, देन नेक्स्ट क्या होगा, एनालिसिस. कि सपोज लंग कैंसर में थ्री ड्रग्स है तो कौन सी ड्रग कितना इफ़ेक्ट देती है, तो वो हो गया मेरा एनालिसिस. एंड आफ्टर दैट बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आई विल राइट द थीसिस. सो दैट इज़ द रिसर्च प्रोसेस. ये हो गया मेरा डिफरेंट स्टेप्स और टोटल 7 steps ऑफ रिसर्च. होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल थ्रू दिस एग्जाम्पल. Now moving towards the next, that is research categories. So in the research, basically there are 2 types of research. First is basic research and the second is applied research. So basic research को हम कह सकते हैं fundamental research और theoretical research और pure research. And applied research को हम कह सकते हैं experimental research. So as the name such as this is the basic research or the fundamental research or the theoretical research, it is based on the theory or the previous concept. Okay, the basic research is basically conducted to verify acceptability of the given theory or to know more about certain concept जो already theories प्रूव हो चुकी है या फिर ऑलरेडी जो कंसेप्ट ट्रू हो चुका है उसके वेरिफिकेशन के लिए जो रिसर्च होता है वो हो गया बेसिक रिसर्च. जनरली जो बेसिक रिसर्च है वो नॉन साइंटिफिक एरियाज़ में होता है, लाइक इन द एजुकेशन फील्ड है या फिर आर्ट्स है या फिर फाइन आर्ट्स है. ये वाले जो सब्जेक्ट एरियाज़ है उसमें जो रिसर्च होता है वो है बेसिक रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च. ओके, सो जो थियोरिटिकल सब्जेक्ट है उसमें होता है. एंड
The second type of research is also known as the experimental research. So इसमें जो real life problems है वो उसके लिए research होता है. So it is conducted when the decision must be made about specific real life problem. Okay, just I gave you the example of lung cancer. So उसमें जो example है that is the example for the applied research or for the experimental research. Okay, so now the next is की फीचर्स ऑफ बेसिक रिसर्च. अब हम देखेंगे जो की फीचर्स है बेसिक रिसर्च के वो. सो बेसिकली इट सर्चेस फॉर द जनरलाइज्ड आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन. जो बेसिक आइडियाज़ है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, या फिर वी कैन से तो जो जनरलाइज्ड आइडियाज़ है एंड इंफॉर्मेशन है, उसके लिए जो सर्च होता है वो उसका मेन की फीचर्स है. देन इट यूटिलाइज बेसिक प्रोसेस एंड सैम्पलिंग मेथड. जो भी कंसर्न टॉपिक है या जो भी कंसर्न रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें जो बेसिक प्रोसेस है या फिर बेसिक मेथड्स है उसको फॉलो की जाती है. ओके, देन द नेक्स्ट की फीचर इज इट एक्सप्लेन जनरल रीजंस बिहाइंड द इवेंट एंड अकरेंस. जो भी जनरल इवेंट्स है या जनरल अकरेंस है, ओके, उसको एक्सप्लेन करता है. And this basic research it extracts as much as data possible. कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो ऑलरेडी थ्योरम प्रूव है उसकी बेसिक डेटास या फिर बेसिक जो रिसर्च है उसके डेटास को एक्सट्रैक्ट करता है एज मच एज पॉसिबल. सो दीज आर द वेरियस की फीचर्स फॉर द बेसिक रिसर्च. नेक्स्ट इज द की फीचर्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च. अभी अप्लाइड रिसर्च के की फीचर्स क्या है वो हम देखेंगे. सो इट स्टडीज सर्टेन इश्यू और द केस विथ स्पेसिफिक एम. यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक एम्स है. ओके, एंड दिस अप्लाइड और द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च उसको फॉलो करती है इन द केस ऑफ सर्टेन इश्यू और सर्टेन केसेस. ओके, देन इट स्टडीज एनी वेरिएबल और डेटा दैट कुड मेक अ डिफरेंस. ओके, जो एज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है लंग कैंसर का कि जो डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई करता है. यहाँ पे ये स्टडी होती है. ओके, जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें. देन इट एम्स टू प्रपोज एनी पॉसिबल चेंज. तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है या फिर मेन एम है वो है अगर कोई पॉसिबल चेंजेस है उसको आइडेंटिफाई करना. ठीक है. देन नेक्स्ट इज इट वर्क्स टू रेक्टिफाई रॉन्ग फैक्ट्स. सपोज कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई रॉन्ग डेटा है तो उसको रेक्टिफाई, उसको चेंज करने के लिए जो रिसर्च होता है दैट इज अप्लाइड रिसर्च. ओके, देन इट यूजेस सिंपल एंड कॉमन लैंग्वेज. जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है वो सिंपल एंड कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करता है. So these are the key features of applied research. Now moving towards the next slide, characteristic of research. Okay, research की characteristic क्या है वो हम देखेंगे. So it required expertise. Okay, we are doing trial and error. Okay, again and again. So उसमें क्या होता है, the researcher or one can require expertise. ओके, कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसका रिजल्ट लाने के लिए, एक्यूरेट रिजल्ट लाने के लिए इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज. द नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्स करेज. ओके, करेज चाहिए रिसर्च करने के लिए. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल. सो जो भी रिसर्च है दैट शुड बी फॉलो ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी लॉजिकल. ओके, अगर ऑब्जेक्टिव विदाउट ऑब्जेक्टिव रिसर्च नहीं होता, सो रिसर्च has to follow the various objectives. Then it directed toward the solution of problem. इधर उधर कहीं पे भी नहीं, direct towards the solution of a problem. Okay, then it should be carefully recorded and reported. Okay, जो भी information या जो भी data है वो correct way में record होना चाहिए and after that report होना चाहिए. Okay, so जो भी डेटा कलेक्शन है वो एंड आफ्टर दैट पब्लिकेशन प्रॉपर वे में होना चाहिए. देन
It demands accurate observation and description. Okay, so रिसर्च में जो भी ऑब्जर्वेशन है या जो भी डिस्क्रिप्शन है वो एकदम प्रॉपर वे में होना चाहिए, करेक्टली होना चाहिए. Then the next feature is it involves quiz for answers to unsolved problems. जो भी unsolved problem है या फिर जो भी area of research है जिसमें आंसर नहीं मिल रहा है तो उसको इन्वॉल्व करना चाहिए. And it should based upon observable experience और empirical evidences. जो रिसर्च है वो प्रॉपर ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस के बेस्ड होना चाहिए या फिर इट शुड बी इन द प्रॉपर, उसके लिए प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए. ओके, एंड द लास्ट फीचर of the research, it involves gathering the new data from primary sources or using the existing data for the new purpose. जो भी प्राइमरी डेटा अवेलेबल है या फिर जो भी बेसिक नॉलेज अवेलेबल है उसके बेस्ड पे होना चाहिए, सो दैट वन कैन एक्सट्रैक्ट द न्यू पर्पस. सो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ research. Hope you all understood very well. Now moving towards the next is hypothesis. अभी hypothesis तो I think आप लोगों को समझ में आ गया है कि the basic definition of hypothesis that is any assumption या फिर हम बोल सकते हैं any guess या फिर prediction. Okay, so it's a पूर्वधारणा. Okay, now the definition of hypothesis. So word hypothesis, it is consist of two words. कौन सी two words? Hypo plus thesis. So the hypo, it means tentative. Okay, and thesis, that is some statement. जो भी tentative या फिर जो भी assumption है या फिर prediction है statement form में. Statement of what? Statement of problem या फिर रिसर्च क्वेश्चन, तो वो हो गया आपका हाइपोथेसिस. या फिर हम कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, द रियलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ विच टू बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड. ओके, दो या फिर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स है उसके between them it should be showing the relationship between that two variables or two or more variables, and it is suggesting any tentative statement. Okay, so that the validity of that it should be tested and verified. Okay, so this is about the hypothesis. Now the next slide is characteristic of hypothesis. hypothesis की characteristic क्या हो सकती है? So it should be clear and precise. Okay, to the point होनी चाहिए hypothesis. It should be clear, it should be precise. Then it capable of being tested. टेस्ट कर सके वैसी होनी चाहिए. जो भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हुई है या भी जो भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की है वो टेस्ट की जा सके. दैट मीन्स कि रिसर्च मेथड फॉलो की जा सके वैसी होनी चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट इज इट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल. दो वेरिएबल है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कैंसर, सो लंग कैंसर एंड द अदर कैंसर, दो वेरिएबल्स है. सो उसके बीच में रिलेशनशिप स्टेट की जाए वैसी होनी चाहिए. लिमिटेड इन स्कोप एंड मस्ट बी स्पेसिफिक होनी चाहिए एंड लिमिटेड इन एनी स्कोप होनी चाहिए. इट शुड बी सिंपल होनी चाहिए. ओके, एंड कंसिस्ट ऑफ नोन फैक्ट्स, जो ऑलरेडी प्रूव है उसके बेस पे होनी चाहिए. एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस इज must explain the facts that gave rise to the need for explanation. Okay, जो भी फैक्ट को एक्सप्लेन कर रही है अकॉर्डिंग टू द नीड होनी चाहिए. जो नीड है उसको एक्सप्लेन करे वैसी होनी चाहिए. सो दीज आर ऑल द डिफरेंट पॉइंट्स विच आर एक्सप्लेनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ hypothesis.
Now moving towards the next slide, sources of hypothesis. So hypothesis के sources क्या हो सकते हैं? So it should be observation, okay, the behavior pattern हो सकती है, okay, we can observe many things, okay, so based on that observation we can formulate hypothesis. The next is relation between price and demand. It is hypothesized. Okay, so for that I will give you one example. Suppose in some of the cities the prices of कार की जो प्राइस है वो डाउन हो रही है, तो दूसरी साइड एक उसका एक प्रॉब्लम है, लाइक इन सम ऑफ द सिटीज़ वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज़ है इन कॉर्पोरेट. सो क्या होती है, लोग घर पे ही काम करते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है. सो दैट इज़ द रीज़न कि कार की प्राइस लो हो रही है या फिर डाउन हो रही है. ओके, सो दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड. अगर लोग बाहर निकलेंगे ज़्यादा तो प्राइस हाई होगी, अगर नहीं यूज़ करेंगे तो उसकी प्राइस डाउन जाएगी. द नेक्स्ट इज एनालॉजीज, दैट इज सिमिलैरिटीज और कोरिलेशन. सिमिलैरिटीज है ना, दैट इज कैजुअल ऑब्जर्वेशन, जो हम जनरली ऑब्जर्वेशन करते हैं. सिमिलैरिटीज या फिर कंपैरिजन वी कैन से. ओके, तो वहाँ से हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज फाइंडिंग ऑफ स्टडीज. अलग अलग स्टडी फाइंड करके वी कैन फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस. द नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ नॉलेज. द थ्योरम्स में बी मॉडिफाइड. जो भी नॉलेज है हमारे पास वो प्लस जो न्यू डेटा या न्यू इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसके बेस पे होती है, दैट इज़ द सोर्स. ओके, देन कल्चर बेस पे हो सकती है, दैट इज़ कास्ट है या फिर कुछ बिलीफ है या फिर कुछ हैबिट्स है, बिहेवियर है, ये भी हो गया अंडर द ऑब्जर्वेशन. ओके, और द बिहेवियर पैटर्न. द नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च. रिजेक्शन ऑफ सर्टेन हाइपोथेसिस, इट मे लीड टू द फर्दर रिसर्च. सपोज कोई हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो गई है या फिर उसका जो रिजल्ट आ गया है, आफ्टर दैट उसका जो रिजेक्शन होता है, तो उसके बेस पे दैट हाइपोथेसिस इट मे लीड टू द फर्दर रिसर्च कि उसका प्रॉपर आंसर क्या हो सकता है. ओके, एंड द लास्ट इज थ्योरी. The large concern on more profit, return on the capital is an index of business success. Okay, so these are the various sources of hypothesis. Okay, so अब हम देखेंगे examples of hypothesis. Hypothesis के examples हैं. First is health education program. ओके, सो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में क्या होता है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, इट इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ पीपल हु स्मोक. जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ये हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. ओके, टू स्टॉप द स्मोकिंग. उसके जो भी नेगेटिव है या फिर साइड इफ़ेक्ट्स है उसको एक्सप्लेन करके, या फिर जो टीवी में ऐड आती है, न्यूज़पेपर में ऐड आती है, वो इन्फ्लुएंसर है. ओके, so that is the hypothesis. After that the next is newspapers affect the people's voting pattern. न्यूज़पेपर है या फिर टीवी पे जो भी ऐड है या फिर जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है उसका इफेक्ट पीपल की वोटिंग पैटर्न पे होता है. ये हो गया एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस. कैसे, जो भी पॉजिटिव आएगा उससे कुछ लोग के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होगा, नेगेटिव आएगा उसके ऊपर से लोगों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होगा. मीन्स पीपल दे बिकम अवेयर. ओके, द नेक्स्ट इज अटेंडेंस. सो अगर लेक्चर्स में अटेंडेंस कंपलसरी है, सो स्टूडेंट क्या करेंगे, दे विल अटेंड लेक्चर्स. ओके, सो वो गया एक एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस. एंड द लास्ट इज डाइट इन्फ्लुएंसेस इंटेलिजेंस. अभी जो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह है, okay, so that will affect the health issue, that will affect the health issue. Okay, so these are the various example of hypothesis. Okay, so that's all about today's session. Whatever queries you have, you note down and you can contact me. We can discuss it later. So take care, have a nice day.